So today we have to have case histories. कल मेरी उससे बात हुई थी सना से, तो she asked कि ठीक है हम हिस्ट्रियाँ आप दें, केस हिस्ट्री दें, हम we have to discuss about these case histories. Who will read this case history? सर मेरी आवाज साफ आ रही है तो मैं पढ़ लेती हूँ। पढ़ें। Mr. J.S. is a 69-year-old man with long-standing type 2 diabetes. He has recently noticed that his left shoe has been rubbing his foot, which he finding confusing because he has been wearing this shoe for 6 months with no problems. His whole left foot now looks red and swollen. When Mr. J.S. inspected it closely, he noticed that there was a weeping sore. However, his foot is not painful, so he does not feel too concerned. What are the questions? The first question is, why Mr. J.S. not feel any pain? So Second is, why Mr. J.S. shoe suddenly have started to rub his foot? So Yes, sir. now note the answer. So what is the Sir, because just now sir, I'm telling the answer ना. because numbness in diabetes, numbness sir उनकी जो nerves हैं वो numbness हो गई थी जिसकी वजह से उनको pain ही नहीं feel हो रहा था. Numbness is known as in a medical term Neuropathy. Neuropathy, sir. So so Mr. J.S. probably developed sensory neuropathy in his feet. Never say. So he has developed sensory neuropathy in his feet. This usually begins with the loss of the sensation of vibrations, then inability to feel a monofilament, and then may progressively lead to complete loss of sensation. पहला तो ये इसका है कि इसकी जो ड्यू टू न्यूरोपैथी जो नर्व जो डायबिटिक पेशेंट जब कंटिन्यूस उसकी जो हाइपर ग्लाइसीमिया होगा तो देयर कैन अ चांसेस ऑफ पेरिफेरल सेंसरी न्यूरोपैथी, उसकी सेंसेशन खत्म हो जाती है. ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया. देन व्हाट द सेकंड आंसर? Sir, because उनको उस टाइम फौरन इसलिए पता चला क्योंकि 6 months से वो बिल्कुल ठीक पहनते थे and then suddenly you feel problem. The second question, why might Mr. J.S. shoe suddenly have Sir, started? because of swelling, his foot might be swollen. अब इसका जवाब सुने. आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? The shape of the feet of people with diabetes has been observed to change over time. This may be due to the development of neuropathy, which can weaken muscles, causing alteration to the shape of the arc of the foot and toe. In this case, Mr. J.S. has sensory neuropathy because he is unable to feel the pain of the weeping sore. It is likely that Mr. J.S. may also have motor neuropathy. So again, it's sensory, then he has also motor neuropathy. Shoes should be checked by the patient daily because quite often patients walk around on foreign bodies, small stones without even knowing. तो क्या होता है जब ये मोटर न्यूरोपैथी हो जाए तो सेंसेशन नहीं आती. डायबिटिक को सेंसेशन पैर में या अक्सर जो मेन चीज एक और आपको बता दें कि डायबिटिक जब न्यूरोपैथिक हो तो फिर क्या होता है कि पेन भी नहीं फील होता पैर में. कोई आपको अगर आप वॉक कर रहे हैं तो कोई जूते में कोई भी चीज आ जाए चुभन नहीं होती खास तौर से. तो इस तरह शेप इसकी जो है उसको मालूम नहीं हुआ तो शेप उसकी आर्क उसकी जो डिस्टर्ब होगी तो उसकी शेप चेंज हो गई. एक ये होगा. व्हाट द थर्ड को मिस्टर जेस बी मोर कंसर्न. अब क्या जो इसका तीसरा जवाब है yes, should be concerned because his lack of sensation does not indicate that the foot injury is not serious. He is at risk of developing an infected ulcer and needs prompt treatment to prevent the problem from becoming severe. तो इसको इसके लिए होना चाहिए serious. So if Mr. J.S. does not seek treatment, he may even risk losing his foot through
एम्पुटेशन। अगर यही हालत रही तो मिस्टर जेएस का जो पैर काटना पड़ा, क्योंकि देयर लीड्स टू ग्रास गैंग्रेन। इसमें ग्रास गैंग्रेन होता है, जो अल्सरेशन होती है, जख्म बढ़ता जाता है, क्योंकि शुगर जब ज़्यादा आप होगी तो आपका इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी कोई एंटीबायोटिक फिर असर नहीं करती है, तो इट लीड्स टू ग्रास गैंग्रेन। तो ग्रास गैंग्रेन का ट्रीटमेंट आप ढूंढना क्या दिया जाता है, दे गो फॉर सम एंटीबायोटिक। अब आप इसमें देखें ग्रास गैंग्रेन में एंटीबायोटिक कौन सी हैं, ये ढूंढना आपने। गैंग्रेन जब इट लीड्स टू गैंग्रेन, इधर या फिर उसकी क्या ड्रेसिंग से ठीक किया जाता है प्रॉपरली, दे यूज टू गो फॉर ड्रेसिंग, रोज ड्रेसिंग हो से रिकवर होगा, अदरवाइज दे गो फॉर एम्पुटेशन, या उसको काट दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अब ग्रास गैंग्रेन अगर हो तो Sir? अब आपने जी एक मिनट, अब ग्रास गैंग्रेन में आपने ट्रीटमेंट ढूंढना क्या होता है, क्योंकि ये गैंग्रेन लीड्स टू जब डायबिटिक फुट क्या करता है, ग्रास गैंग्रेन तक चला जाता है। जब गैंग्रेन हो जाए, जब नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे टिश्यूज, तो देन लीड्स टू एम्पुटेशन किया जाता है। जी बेटा आप पूछें। या क्वेश्चन प्लीज। जी बोले बेटा। Have you got the answer of 3 questions? Yes, sir. हाँ, इन तीनों मतलब इसको लीड्स जब होता है कि सेंसेशन नहीं रहती, इसलिए जब भी वो आपके आसपास जो डायबिटिक पेशेंट हो, ही हैज टू डेली चेक करें अपने जो शू है, पैर जो है चेक करने चाहिए डेली, उसको साथ साथ एक सेंसेशन तो नहीं खत्म होगी। व्हाट वाज इट अबाउट सेकंड केस हिस्ट्री? हु विल रीड दिस वन? जी हु विल रीड दिस? आप में किस? जी सना, कैन यू रीड? जस्ट ये पीछे पढ़े हो। So who will read the second history? Miss Ayal, Sana can I read waiting. too? पढ़े बेटा। Miss Ayal is a 17-year-old teenager with recently diagnosed type 1 diabetes. She has been admitted to hospital with DKA, which was precipitated by a diarrhea and vomiting bug. Because she has vomiting, she was not eating, and hence she temporarily stopped injecting her insulin. Miss Ayal is normally well controlled on basal bolus insulin regimen comparing insulin glargine, Lantus at night, and insulin glulicine, Apidra 3 times daily with meals. Now, what are the questions? Why was it a mistake for Miss Ayal not to inject her insulin whilst she was not feeling well enough to eat? What advice should patients on insulin be given regarding glucose management when they're feeling unwell and not able to eat normally? Right. Third, What are the initial management priorities for patients admitted? Fourth question. With diabetic ketoacidosis, and what's the correct way for subcutaneous insulin to be reintroduced after the patient has been on continuous intravenous insulin infusion? What the answer for first? क्या होता है जब आपकी शुगर लो हो, अक्सर समटाइम द पीपल डोंट टेक देयर मेडिकेशन, रोक देते हैं, क्यों? क्योंकि शी हैज स्टॉप टेकिंग इंसुलिन, और एंड टाइप 1 डायबिटिक में क्या, दे मस्ट हैव टू टेक इंसुलिन। Well, Sana, have you do you know the answer? चलें, मैं give the answer, सुने। This is a common misunderstanding amongst patients and sometimes even healthy care professionals. When a person is unwell,
his or his insulin requirement can often increases despite not eating. जब आपको इन्फेक्शन हो जाए कोई चीज हो तो आपकी शुगर लेवल बढ़ जाता है. फर्स्ट जब भी शुगर लेवल बढ़ जाएगा वो ये whether he is thinking that he is eating or he is not eating, therefore when you eat the sugar level has to increase. But चांस होता क्या है whenever the infection होगा there are chances कि sugar level बढ़ जाएगा. Then this अच्छा जब आपको स्ट्रेस हो तब भी शुगर लेवल बढ़ जाता है. When you have stress involved and the increase in the production of counter-regulatory hormones which increases glucose level, उससे क्या होता है शुगर लेवल बढ़ जाता है. ठीक है, वो बेशक ही because she had stopped taking meal मगर शुगर लेवल उसका फिर भी बढ़ जाता है. क्यों? एक तो स्ट्रेस और साथ ही जो दूसरा सिस्टम उसके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन से का शुगर लेवल बढ़ जाता है. अब क्या करना चाहिए? जी बच्चों पहली बात कि जो इसने मिस्टेक की है कि दे डू नॉट स्टॉप टेकिंग इंसुलिन लेना शॉर्ट टाइम बंद करना गलत किया. दे यूज्ड टू टेक इंसुलिन साथ लेनी चाहिए. ठीक है, अब व्हाट शुड एडवाइस क्या होनी चाहिए? आपको आवाज आ रही मेरी बेटा? Yes, sir. Nobody is on waiting. ये कौन लाइन लगा रहा है? अच्छा, the patient should be consult on what are commonly referred to as sick day rules and should be given contact number for the advice if they are unclear or struggling with management. Generally, patients need to increase the frequency of glucose. Now what they have to do? They have to monitor the glucose every 2 to 4 hours. First, they have to monitor the glucose and test blood ketones on a regular basis. वो ये नहीं कि उसको sugar, she has stopped taking meal, then she has stopped taking insulin. Now what she has to, they have to monitor glucose level. Now with that, carbohydrate intake should be maintained as much as possible. अब क्या लेना? If she can't take meal, now she goes for sugary linked drinks or fruit juice can be taken. Soup, jelly or snack food साथ ऐड कर लिया जाए. If they are खाने में उनको मुश्किल है तो what they have to, आपको जो मिठास है जो sugar साथ साथ he has to add such type of foods. साथ what she has to take? Fluid intake as important and patients should be advised to have a glass of water every hour. साथ साथ water intake बढ़ा ले. Aiming for 3 liters in 24 hours depending on the glucose and ketone levels. Bolus of quick-acting insulin equivalent to 10 to 20% of the total daily dose will need to be given every 2 to 4 hours. अब जो इन्होंने इंसुलिन बंद की थी, she has to continue. ठीक है? But the third answer? Who will tell me the third answer? So third is, now with that they have to add sodium chloride. अब जब सोडियम क्लोराइड लेने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? When you need sodium chloride तो आपके साथ क्या ऐड करेंगे हम? नॉर्मल सेलाइन. नॉर्मल, शाबाश. नॉर्मल सेलाइन की कितनी स्ट्रेंथ होती है? 0.9. 0.9 should be started. 0.9%. How much? 0.9%. Yes, 0.9% should be started as soon as possible. साथ उसके क्या किया जाएगा? नॉर्मल सेलाइन ऐड की जाएगी.
As soon as possible, a fixed rate intravenous insulin infusion should then be started. साथ ही IV insulin देना शुरू करें उसको. Then they have to take IV insulin. अब इसमें क्या जो इसकी डोज क्या दी जाएगी IV में? अब इसमें क्या जो 0.1 यूनिट पर केजी दिया जाएगा. IV में डोज बहुत कम हो जाती है. You remember? The dose which is given on subcutaneous उस और intramuscular से भी IV की डोज को sometimes 1 or 2, 3 units has to be added in 1000 ml. IV डोज बहुत कम दी जाएगी. तो 0.1 unit per kg. Regular hourly monitoring of the साथ they have to monitor the blood glucose and ketone also. They have to ये जो शरीफ आदमी लाइनें लगाने लग गया है, इनसे कहें कि मेहरबानी करके ये काम ना करें. मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको ये मालूम हो जाएगा किसने किया है. फिर आप शर्मिंदा होंगे. मेरे पास है प्रोविजन कि मैं आपका भी नाम बता दूं जो साहब ये लाइनें लगा रहा है. अगर आपको नहीं पढ़ना बेशक आप अपने आप ऑफ कर लें, मगर लाइन ना लगाएं इसके ऊपर. ये आपकी रिकॉर्डिंग जाएगी आपके यूनिवर्सिटी में और वो ट्रेस हो जाएगा ये की है. और इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा तो आप ट्रेस हो जाएंगे क्यों इस तरह के काम करते हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं आप. तो क्या व्हाट वाज द डोज? 0.1 unit can be given. What they have added? Insulin, and then they have to add it with normal saline. यहाँ तक बात क्लियर होगी? जी बच्चे इट इज क्लियर? Yes, sir. ओके. अब फोर्थ चीज की बात है वे फॉर सब रीइंट्रोड्यूस. अब कब when the patient is biochemically stable, the patient may be converted back to subcutaneous insulin. The current national guideline from the Joint British Societies in Patient Care Group at 2010 recommended that long-acting subcutaneous insulin analog are continued throughout treatment of diabetic ketoacidosis to prevent rebound hyperglycemia when the intravenous infusion is stopped. अब इसको क्या दें? ग्लार्जीन शुड हैव बीन कंटिन्यूड. साथ ही इनको फिर दोबारा लॉन्ग एक्टिंग जो ग्लार्जीन है, ग्लार्जीन का ब्रांड क्या है? व्हाट इज द ब्रांड ऑफ ग्लार्जीन? कोई बताएगा? Who knows the brand of Glargine? So Lantus. Yeah, boss, Lantus. Lantus. Manufactured by which company? You remember? Novo Nordisk. Novo Nordisk. No, it's manufactured by Sanofi. Sanofi. Sanofi से बनाते हैं. No, Sanofi बनाती हैं. 3 फर्म हैं जो बनाती हैं ये मुख्तलिफ लॉन्ग एक्टिंग. सो अब इसको साथ क्या किया इन्होंने? इंसुलिन साथ दी और साथ ही नॉर्मल सलाइन ऐड कर दिए. इज इट क्लियर? अब क्या होता है कि 2 दी जाती हैं साथ रैपिड दी जाती है. हमेशा कॉम्बिनेशन में इधर लॉन्ग एक्टिंग के साथ हमेशा होता है कि पीपल समटाइम थिंक दैट एक इंसुलिन दिया जाएगी लॉन्ग एक्टिंग के साथ हमेशा शॉर्ट व्हेनेवर यू हैव टू मील you have to take short acting साथ ऐड की जाती है. either they go for oral drugs or they have to go for insulin. तो जब आप शॉर्ट एक्टिंग साथ ऐड करेंगे, शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन सी अवेलेबल आपको बताई थी? रेगुलर इंसुलिन. हाँ, उसमें शॉर्ट एक्टिंग में 2-3 किस्म की आती हैं, तो साथ ऐड करेंगे. हमेशा कॉम्बिनेशन दी जाती है. जी सर एस्पार्ट. उसमें जो भी ब्रांड आपके पास याद हो. तो शॉर्ट एक्टिंग में फिर इंटरमीडिएट भी है. तो शॉर्ट एक्टिंग से क्या होता है कि व्हेन यू टेक ए मील कितने मिनट पहले लेना होता है मील से? सर 15 मिनट्स. हाँ, 5 to 15 है.
5 to 15 है, और जो हिमोलिन 70-30 उसमें हाफ एन आवर है। प्रैक्टिस में कि हाफ एन आवर बिफोर में उसकी जो सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। समटाइम क्या आपने खाना खाया फौरन अगर आपने इंसुलिन लगा ली तो उसकी सर्कुलेशन देर से होगी, तो फिर वो जो पोस्ट प्रेंडियम जो शुगर है वो आपकी ज़्यादा आएगी, तो आपने वो भी कंट्रोल करनी होती है। खाने के बाद जो आपकी शुगर आफ्टर 2 आवर्स इट मस्ट बी कंट्रोल। तो साथ क्या करना कि आपने उसकी जो सर्कुलेशन देर से होती है, तो शॉर्ट एक्टिंग 5 to 15 मिनट्स डिपेंड अपॉन आप कितनी उसकी शुगर लेवल उस वक्त था। ये भी साथ समटाइम दे यूज टू टेक शुगर लेवल बिफोर मील। अगर वो 120 या 130 हो तो ठीक है, then they can take 15 minutes, but if it is lower than that है तो they have to take the insulin, और साथ ही खाना, साथ ही कार्बोहाइड्रेट साथ ऐड कर दिए जाए। अब इनके ट्रीटमेंट में क्या आ गया? इंसुलिन, नॉर्मल सलाइन एंड शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन उसमें साथ की जाएगी। मील एंड द इंट्रावेनस इंसुलिन इन्फ्यूजन शुड बी स्टॉप 30 मिनट्स आफ्टरवर्ड। उसकी जो आईवी है वो बंद कर दी जाएगी उसको। सर इज इट क्लियर बच्चों? एनी क्वेश्चन? देन वी गो फॉर केस हिस्ट्री नंबर 3। इज इट क्लियर? ये आपको मैं आंसर भेज दूंगा, ये भी मेरे पास हैं बने हुए, आपके खुद इसको पढ़ें, और क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा। So who will read the history number 3? जी बच्चों कौन पढ़ेगा? हसनैन, आर यू देयर? हसनैन, हसनैन इज नॉट अवेलेबल। लड़कों देखें, ओहो बहुत ही अक्लमंद साहब है जो भी लाइनें लगा रहा है। इस वक्त मैं बच्चियों के सामने इसको क्या कहूँ? दिलीप कुमार, कैन यू रीड? दिलीप दिलीप आपको आवाज आ रही मेरी? जी नवीद, आपको आवाज आ रही? यस सर। नवीद, जी निमरा मुख्तार, आपको आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ जी नवीद बेटा पढ़ेंगे इसको। Mrs. FR is 77 years old woman. She is usually पहले very चांस, पहले नवीद को जरा चांस independent. अगर ही कैन रीड देन यू गो फॉर। नवीद आप पढ़ सकते हैं इसको? यस सर। हाँ जी बेटा पढ़े। Mrs. FR is 77-year-old woman. She is usually very independent and has never taken any regular medication. She was recently prescribed 2 courses of antibiotic for urinary tract infection. Her daughter visited this morning and called the ambulance because her mother was very confused and looked very unwell. Review in the emergency department identified that Mrs. FR is extremely dehydrated. Her blood glucose level on the standard machine read high, and the laboratory blood glucose was confirmed at 65. Her sodium is 168, normal range. Her GFR is reduced at 13 ml per minute from her usual baseline of 26 ml per minute. What the first question? What is the likely cause of Mrs. FR symptoms and elevated blood glucose? So anyone answer of this? What's the diagnosis? So the likely cause of the symptom is prolonged hyperglycemia. जब ज्यादा शुगर बढ़ती है रहो तो ये चांसेस हो सकते हैं। ये सिम्टम क्या है?
The likely cause of this symptoms is prolonged hyperglycemia and undiagnosed type 2 diabetes. जब कंटिन्यूस आपकी शुगर लेवल बढ़ता रहेगा तो दीज आर द चांसेस ये हो सकता है. ठीक है, पहली बात है शी इज पेशेंट ऑफ डायबिटीज एंड वो भी टाइप 2. ग्लाइकोसूरिया जो पेशाब में शुगर बढ़ गया है, ग्लाइकोसूरिया हैज काज्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. अब जब शुगर लेवल बढ़ गया तो साथ क्या हो गया, यूटीआई हो गया. एंड दिस एक्यूट इलनेस हैज पुट फर्दर फिजियोलॉजिकल strain on Mrs. FR. This in turn has caused further increase in the blood glucose and increased dehydration. साथ ही अब क्या हुआ, dehydration भी हो गई है, culminating in the acute emergency episode of hyperglycemic hyperosmolar syndrome. क्या है, HHS. आप देखिएगा what is HHS. साथ क्या होगा इनको, hyperglycemic hyperosmolar syndrome. ये नोट कर लें. HHS के बारे में डिटेल ये क्या होता है, व्हाट इज HHS? सना, हैव यू नोटेड? Yes, sir. HHS, इट्स ए hyperglycemic hyperosmolar syndrome हो गया साथ ही. ठीक है, बस ना तो डायग्नोसिस की है कि HHS इनको हो गया है. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन. जी बेटा नवीद. ये नवीद, आप क्या, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? हाउ शुड मिसेस FR बी मैनेज, कैसे मैनेज किया जाएगा? अब व्हाट यू हैव टू डू, इनिशियल मैनेजमेंट इज फ्लूइड रिसोसिएशन विद सोडियम क्लोराइड 0.9. क्या इन पेशेंट्स को डेक्सट्रोज सलाइन दी जा सकती है? सर इनको हाइपोटोनिक फ्लूइड्स देंगे ना? हाँ, नहीं, कैन विद इनको डेक्सट्रोज सलाइन दी जा सकती है? No, sir. नो, ओनली सलाइन देंगे. कभी भी डायबिटिक पेशेंट को आप डेक्सट्रोज या डेक्सट्रोज जैसे अलग है तो 3-4 किस्म में आती हैं, डेक्सट्रोज सेपरेट, डेक्सट्रोज सलाइन. तो इसको सिर्फ क्या देंगे, सलाइन देंगे. सो दिस इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स दी एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन, साथ खत्म की जाएगी इनकी. स्टेबलाइज द ब्लड प्रेशर, साथ इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट. इससे क्या होगा कि उनका ब्लड प्रेशर सेटल होगा. और थैंक यू वेरी मच. ये जितने भी दोस्त आपका लिख रहा है इसको कहें कि सना कैन यू अभी इनको ढूंढ सकते हैं कौन लाइनें लगा रहा है? सर आई थिंक आपके पास ऑप्शन होगा, हमारे पास नहीं होता. इन नामों में तो नहीं है जो आपके, आप में से कोई है जिसमें जितने नाम हैं? अब मैं फाइनल होकर देखता हूँ इसको. अच्छा, अब क्या बात होगी, एक वो देंगे. अब इनको देना है, इनसे 0.05 यूनिट पर केजी देंगे. उधर 0.1 था, यहाँ कितना दे रहे हैं, 0.05 यूनिट पर केजी पर आवर. should be started if blood glucose fails to fall despite adequate fluid replacement. तो साथ ही साथ हम देंगे इंसुलिन देंगे इसको. फर्दर क्या प्रोफिलैक्सिस देंगे इनको, thromboembolism is also required. प्रोफिलैक्सिस क्या देंगे, व्हाट्स ए thromboembolism? What's thromboembolism? So prophylaxis of thromboembolism is also required. तो दो चीजें इसमें होगी मैनेजमेंट में, एक तो इनको इंसुलिन देंगे, साथ नॉर्मल सलाइन एंड फर्दर फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के एम्बोलिज्म के चांसेस हो सकते हैं इनमें, लंग में जाके इनके कोई ना कोई एम्बोलिज्म हो सकती है. तो उसको रोकने के लिए दे हैव टू गिव सम प्रोफिलैक्सिस. ठीक है. अब थर्ड इनका क्वेश्चन क्या था, we'll read this third question. Now What advice should be given about the long-term management of a blood glucose? अब क्या की जाएगी उसमें फिर हम बता रहे हैं कि what there now has renal impairment. Now what metformin, SGLT2s, what ये find out करें SGLT2s क्या हैं.
SGLT2 is a sodium glucose co-transport inhibitors. अब ये आपने देखने इसमें कौन सी दवाइयाँ आती है इस कैटेगरी में. फाइंड द सेकंड आपका क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ड्रग्स इन SGLT2 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स इनहिबिटर. हम तो आज तक उन्हीं दवाइयों पे चल रहे हैं जो हमारे हैं. अब नई नई मॉलिक्यूल्स आ गए हैं ओरल एंटी डायबिटिक में. तो दिस ग्रुप इज SGLT2 inhibitors and some further DPP. दो तरह के इसमें जो है सिर्फ SGLT2 देंगे एंड सम DPP आर नॉट सुटेबल. तो DPP क्या है? डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडाइडेज. सेकंड है DPP इनहिबिटर्स. एक क्या है SLGT, सेकंड क्या है DPP4 इनहिबिटर्स. इन दोनों की ड्रग्स आपने ढूंढ के बतानी है. दैट इज नॉट सुटेबल. साथ ही इसमें पायोग्लिटाजोन इज नॉट एप्रोप्रिएट. तो मेरे DPP में पायोग्लिटाजोन आती हैं. सेकंड इसका पायोग्लिटाजोन इज नॉट एप्रोप्रिएट ड्यू टू बोन फ्रैक्चर रिस्क इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन. क्योंकि ओल्ड एज है तो DPP4 इसमें और पायोग्लिटाजोन नहीं दी और ओनली क्या देंगे हम SGLT2. Risk in post-menopausal women. The remaining agents should be considered on an individual basis. साथ क्या कहेंगे sulfonylureas and insulin are clinically effective option and will have an immediate effect. तो sulfonylurea में कौन सी ड्रग्स हैं? सर ग्लिमिट्राइड. साथ sulfonylurea इंसुलिन दिया जा सकते हैं and will have an immediate effect. Consideration should also be given to the risk of hypoglycemia treatment, target confidence in monitoring blood glucose result in non-renal cleared cell. Linagliptin may also be appropriate. अब जब if a non-renal cleared, then they can have DPP4. At that time, it was not given. इसमें sitagliptin या linagliptin जो है DPP4 है. Is it clear? अब इन जो आपको ये भी मैं आपको ये आंसर भेज दूंगा. अब इसके मुताबिक आप इन सबको देंगे आंसर. You have to read these one. आपको केस 64 भेजी थी? नो सर, आपने एक ही भेजी थी. केस फर्स्ट मेरे पास है. मुझे कि फार्मा इसकी जो क्लिनिक की बुक आ गई है तो उसमें ये सारे इस तरह की ये आसान मेरे में हिस्ट्रियां हैं. Can you follow these histories? यस सर. हाँ, ये हिस्ट्री आसान है. थोड़ी सी आपको आसान इसमें आ जाएगी बजाय कि वो जो उस कोटा कैम्बल की हिस्ट्री थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं. जी नवी, do you understand the answers? Naveed? Dalip, are you there? यस सर. क्या बात है, उमर कोर्ट से आने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो रांची का फायदा क्या हुआ आपके आने का? सर इलेक्ट्रिसिटी इशू था इस वजह से. आप जा सकते हो पढ़ने के लिए. आपके आसपास सॉरी सर आवाज नहीं आ रही. मैंने कहा कि आप दोस्त के पास भी जाके पढ़ने के लिए जा सकते हो अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है. सर यहाँ एक्चुअली करीब कोई ऐसा रहता नहीं है इस वजह से, और यहाँ के यहाँ तक अपार्टमेंट में सब में लाइट नहीं थी. आए तो फिर उसको क्या फायदा हुआ उसका? यू कैन मैनेज किया जा सकता है उसको. जी सर बिल्कुल. आप देखें ना बेटा, ये टाइम पढ़ने का टाइम है, आप पढ़ लें. खाली आपने इस तरह की कि मैं लाइट नहीं तो मैं नहीं पढ़ सकता. जब याद इतने दूर से बंदा आए ना, घर से भी दूर और पढ़ भी, मुझे इसका ये फील था. सर एक्चुअली ये है कि लाइट की वजह से इंटरनेट चलता है. अब मैं आपकी एक क्लास की वजह से पैकेज करवाऊँ 600 का, सर ऐसा तो हो नहीं सकता. आपको मानता हूँ, पर जब आपको पता है कि लाइट, तो ऐसी जगह पर अरेंज कर लें जहाँ आपके दोस्त अहबाब आसपास हो, तो वहाँ आदमी कर लेता है. सारे शहर की लाइट तो नहीं बंद होगी ना. सर एक्चुअली हमारी